नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राजा बिस्किट्स प्रेजेंट्स रमज़ान आज आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हुए मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। रमज़ान आज इज पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा को प्रेजेंटेड बाय हिमानी नवरत्न ऑयल एंड रिवाइटल। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं 1 घंटे पर मुश्तमिल इस रंगारंग प्रोग्राम में, जिसमें हम और आप होंगे साथ साथ, और इसमें आपकी दिलचस्पी के लिए भी बहुत सारा सामान है। इसमें आप अपने दीनी मसाइल के ताल्लुक से मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हम आपको ले चलेंगे किसी शहर की सैर पर और दिखाएंगे रमज़ान की रौनकों का और रोज़ेदारों की सरगर्मियों का आंखों देखा हाल। साथ ही साथ होगा रमज़ान क्विज भी, जिसमें हम आपसे पूछेंगे एक सवाल और सही जवाब बताकर आप भी बन सकते हैं एक शानदार इनाम के हकदार। जी हाँ, जीतने वाले को मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो बहुत सारी चीजें हैं इस प्रोग्राम में, आप हमारे साथ साथ रहें। 1 घंटे हमारा और आपका साथ बना रहेगा। लेकिन आइए हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करते हुए स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। मशहूर व मारूफ आलिम दीन AskIslampedia.com के फाउंडर जनाब मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल करते हैं। और तशरीफ फरमा है कारी फजलुर रहमान नसीम साहब, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। और नाजरीन, आइए हम गुजारिश करते हैं कारी साहब से कि वो अपनी खूबसूरत और खुश इल्हान तिलावत कुरान पाक से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीनि अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीनि
الدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے قاری فضل الرحمان صاحب کے خوش الہان تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، سورہ 3 کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آئیے ہم پروگرام کے سلسلے کو لے چلتے ہیں اگلے پڑاؤ پر۔ برادر الیاس شرف الدین صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، آپ کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آئیے ناظرین، اب اپنے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن پاک میں صبر اور شکر، ان دونوں کی بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے، اور اکثر دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ رمضان کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں آپ سے کہ صبر اور شکر کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صوم کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکر کا ورڈ بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صوم کا صبر سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور شکر تو ڈائریکٹ ورڈ ہی آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو کوئی اس مہینے کو پالے اس کو بس روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، یعنی حکم کے طور پر ہے۔ کتب علیکم الصیام کہہ دیا گیا۔ دراصل سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنی بھوک پر کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ دنیا کے ہر وہ مقامات پر جہاں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کنٹرول کر نہیں پاتے کئی چیزوں پر، تو دنیا کے وہ سارے مقامات پر جہاں پر کنٹرول کرنے کی ایک انسان کو سخت ضرورت ہے تو انسان کے اندر وہ کنٹرول کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور اس سلسلے میں بہت سارے سوالات ہیں جن کے بارے میں آپ سے ہم رہنمائی لیں گے، لیکن مسکان صاحبہ ممبئی سے ہیں فون لائن پہ، پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی مسکان صاحبہ فرمائیے، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ادھر رمضان کے دن پہلا چاند ایک دن بعد چاند دکھائے، جی لیکن باقی سب دیشوں میں جس دن دکھنا چاہیے تھا اسی دن دکھا تھا، جی تو ہم نے جس دن نہیں دکھا تھا ہمارے ادھر اس دن بھی میں نے روزہ رکھا تھا، تو وہ روزہ قبول ہوگا کیا میرا؟ جی جی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے فمن شہید منکم الشہر، شہر، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کا مطلب شہرت سے ہے، یعنی اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کے ایریے میں جو چاند نظر آتا ہے جس کو آپ کے ایریے کے علماء کرام نے اپروو کیا ہے اور اسی کو انہوں نے اعلان کیا، شہرت دیا ہے، تو آپ اس روزے کا آپ کے پاس اس مہینے کا اعتبار ہوگا، اس دن کا اعتبار ہوگا جو آپ کے علماء نے، جیسے انڈیا کے کئی اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ لیول پر اگر علماء نے طے کیا ہے کہ ہمارا اس اعتبار سے ہم رمضان مبارک گزاریں گے اور ہم دوسرے اسٹیٹ کا نہیں لیں گے، تو شریعت میں اس بات کی بھی گنجائش ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ نے جو روزہ رکھ لیا ہے، اگر وہاں کے مقامی علماء نے ایک دن کے بعد رمضان کا اعلان کیا جبکہ آپ نے دوسرے ریاست کو دیکھ کر یا کہیں دیکھ کر آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، تو گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، وہ نفلی اعتبار سے شمار ہو جائے گا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ جی تو امید ہے کہ مسکان آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اتراکھنڈ سے مہجبین ہیں ہمارے ساتھ، جی فرمائیے مہجبین، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں مہجبین بول رہی ہوں تانچل سے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، ہمارے گھر میں بہن ہے جو ابھی سے ہمارے سونا رکھا ہے 2 تولے، اور جو ہم نے وہاں پر سونا کچھ ڈپازٹ پیسے دے رکھا ہے 5 تولے کے لیے، تو کیا بہنوں کے نام سے جو رکھا ہے ان پہ بھی زکات لگے گی، اور جو ہم نے پیسہ دے رکھا ہے ان پہ بھی زکات لگے گی؟ آپ کا جواب واضح طور پر پہنچ نہیں سکا مہجبین، ایک بار دوہرا دیجیے اپنا سوال۔ مجھے پوچھنا ہے، ہم بھائی بہن، میری 2 بہنیں ہیں، ہم دونوں بہنوں کی شادی ہونے والی ہے، تو ہم نے میری امی نے ہم بہنوں کے لیے 2 تولے سونا رکھا ہے، اور ہم نے سونار کو بھی 5 تولے سونے کا آرڈر دے رکھا ہے، تو ہم نے ان کو پیسے دے رکھے ہیں، کم پورے پیسے نہیں دیے ہیں لیکن دے رکھا ہے ان کو، تو کیا جو ہم بہنوں کی شادی کے لیے رکھا ہے اس پہ بھی زکات لگے گی، اور جو ہم نے سونار کو پیسے دے رکھے ہیں، ڈپازٹ دے رکھا ہے، اس پر بھی زکات لگے گی؟ جی بہت بہتر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बहन ने जो सवाल किया है जो हमको समझ में आया वो ये है कि बहनों के नाम पर 2-2 तोले सोना रखा हुआ है, दो अलग रखे हुए हैं, और उसके ओनर बहनें हैं, जो सवाल से समझ में आ रहा है, यानी माँ उसकी ओनर नहीं है, बहन ओनर है, जो शादी के बाद में या तो हैंड ओवर किया जाएगा, फिर जो भी शक्ल हो सकती है। अगर वो ओनर दोनों बहनें हैं 2-2 तोले के, और कहा कि सुनार को भी 5 तोले का ऑर्डर है, तो अब 5 तोला का मतलब निकला कि 2.5 को बांटेंगे, अगर हम ये एक को 5 करेंगे, दोनों भी मतलब इसके अंदर हो सकते हैं। मुकम्मल कीमत अभी नहीं दी कह रहे, तो इसका मतलब ये निकला कि आपके सवाल मैं जनरल उसूल बता देता हूं ताकि आप खुद ये फैसला करें। एक बहन के नाम पर अगर वो ओनर है तो 7.5 तोला सोना, और दूसरी बहन के नाम पर भी 7.5 तोला सोना या उसके बराबर की करेंसी, यानी पैसे की शक्ल में इंडियन करेंसी या सऊदी करेंसी जो भी है, ये सोना और ये करेंसी दोनों मिलाकर 7.5 तोला सोना अगर पार हो जाता है, 85 ग्राम से अगर पार हो जाता है, तब तो फिर दोनों पर भी ज़कात लगेगी, अगरचे कि वो शादी ही के लिए क्यों ना रखा गया हो। लेकिन अगर 7.5 तोला पार नहीं हो रहा है, साल भी नहीं गुजरा है, दोनों को मिलाने की कोशिश में, दोनों बहनों का मिलाकर ज़कात देने की बात मत करें। जब इंडिविजुअल ओनरशिप हो गई तो दोनों पर अलग अलग एतबार से निसाब की बात होगी। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल। जी, तो उम्मीद है कि मैजबी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और नाजरीन, यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का बहुत खास हिस्सा है रमजान क्विज भी, जिसमें हम आपसे पूछते हैं एक सवाल और विनर को मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो वो भी होगा हमारे इस प्रोग्राम में, कहीं ना कहीं गौर से देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। आइए ब्रदर इलियास शरफुद्दीन साहब का एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे ब्रदर के तहम्मुल, बुर्दबारी, तवाज़ु, इनकिसार, इन तमाम सिफात को अगर यकजा कर दिया जाए तो सब्र बनता है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है आज, उसे सब्र की कितनी ज़रूरत है? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेयार ज़िंदगी को हम देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला नबूवत वाली ज़िंदगी में हर दिन आपने सब्र का एक उम्दा नमूना पेश किया, चाहे वो दावत दीन के मसले में हो, चाहे वो तंगी के मसले में हो घर के चलाने के लिए, चाहे हालात की खराबी हो, या आपके बच्चों का एक के बाद अल्लाह को प्यारे होना हो। जिंदगी का कोई मरहला ले लें आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का एक उम्दा नमूना थे। हमारी जिंदगियों का अगर आप अंदर ले लें आज की तारीख में, तो इसका बिल्कुल अपोजिट हमको जो सो मामला नजर आता है। हमारे जिंदगियों के अंदर सब्र चले गया, और उसकी वजह से उजलत पसंदी, जल्दबाजी, एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करना, और अल्लाह ताला की रहमत से जल्दी नाउमीद हो जाना, एक आम तौर पर यह चीज पाई जा रही है, जिसकी वजह से नेक रास्ता छोड़कर गलत रास्तों से कमाई करना, अल्लाह ताला से जो दुआएं की गई है वो तवक्कल नहीं करते हुए, अल्लाह की रहमत के मुंतजिर नहीं रहते हुए दूसरे रास्ते अपनाना एक आम बात बनी जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि हमने फिर से अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहिए, लौट आना चाहिए अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ, सब्र की अहमियत को जानना चाहिए, क्योंकि जो 4 एग्जाम्स अल्लाह ने लिखने के लिए कहा जन्नत में जाने के लिए, बगैर उसके जन्नत नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। चौथा एग्जाम जो है वो सब्र है, बगैर सब्र के जन्नत नहीं मिलने वाली, ये हमने जान लेना चाहिए। बिल्कुल ब्रदर, बहुत शुक्रिया। और दरख्शां साहिबा हैं बनारस से फोन लाइन पे। जी दरख्शां, क्या जानना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मौलाना साहब को मेरा सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि रमजान में जो हम लोग कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं या पंज सूरह की तिलावत करते हैं या तस्बीहात पढ़ते हैं, तो उसको किसके नाम बख्शना होता है? जी मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। कोई इंसान किसी एक दूसरे को बख्श नहीं सकता। तो सबसे पहले इस वर्ड की तशरीह यह है कि बख्शने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं तो ये सवाब माँ बाप को बाय डिफॉल्ट चला जाता है, चाहे आप नियत करें या ना ही करें। माँ बाप बच्चों के लिए चूंकि जरिया है, तो अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम किया है कि बच्चे जो कुछ भी नेकी करते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, माँ बाप को खुद ब खुद पहुंच जाता है लेकिन बच्चे अगर गुनाह करते हैं तो माँ बाप को गुनाह नहीं पहुंचता। माशाअल्लाह, अल्लाह ने कैसे इंतजाम कर दिया देखिए। और कुरान मजीद एक आपकी अपनी बदनी बात है, जैसे नमाज आप दूसरे तरफ से नहीं पढ़ सकते, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कुरान मजीद भी दूसरे को सवाब दिलाने के लिए पढ़ने का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है।
हाँ, अलबत्ता आप ऐसा कर सकते हैं कि कुरान मजीद पढ़ने के बाद, खत्म होने के बाद या नफिल नमाज जब आप पढ़ते हैं तो जो आपकी दुआएं होती हैं उन दुआओं में आप सारे मुसलमान भाइयों के लिए दुआ कीजिए। एक फरिश्ता आमीन आमीन कहता है जब आप किसी के लिए गायबाना दुआ करते हैं। सूरह हशर नंबर 59 के आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला कह रहे हैं नेक लोग वो हैं जो बाद में आकर अपने गुजरे हुए नेक लोगों के लिए दुआएं करते हैं। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल जी। तो अपनी दुआ खैर में आप शामिल कर सकती हैं दरख्शा साहबा तमाम लोगों को। अब्दुल कदीर साहब हमारे अगले कॉलर हैं बेंगलोर से। जी फरमाइए अब्दुल कदीर साहब, क्या जानना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने सुन्ने का जो ज़कात है सब अदा कर दिया है जी, लेकिन मेरा एक 45,000 रुपये खर्च है जी, तो मेरे पास एक 30,000 रुपये कैश है, तो इस सूरत में क्या मुझे उसका भी ज़कात अदा करना है? जी जी मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कर्जा का आपने जिक्र किया है 45,000, उसको आप अपने जहन से फिल वक्त निकाल दीजिए, क्योंकि ज़कात अदा करते वक्त पर आप ये नहीं देखेंगे कि आप कर्जदार कितने हैं। ज़कात अदा करते हो तो आप ये देखेंगे कि आप कितने चीजों के मालिक हैं। तो आपने कहा कि मैंने ज़कात अदा कर दी, इसका मतलब निकला कि शायद आपने सोने पर अदा की होगी, यानी कि 7.5 तोले सोना या 85 ग्राम सोना अगर आपके पास था, उससे बढ़कर था, तो आपने अदा कर दिया। तो ये जो अमाउंट है 30,000 भी आप वो सोने के साथ ही शरीक कर देंगे और ये कुल अमाउंट पर आपको ज़कात निकालना है। तो इसका मतलब आपको ज़कात का निसाब अगर पहुंच चुका है तो ये 30 का और निकालिए आप। ऐसा जहन में मत लाइए कि 40 को मैं 30 से माइनस करके सिर्फ 15 के निकालूंगा, ऐसी बात नहीं है। आज दुनिया में जितने बड़े मालदार होते हैं उतने बड़े कर्जदार भी होते हैं। अगर कर्ज की बुनियाद पर छूट दे दी जाए तो सारे मालदार निकल जाएंगे, गरीब बच जाएंगे फिर आखिर में। आपका जवाब तो उम्मीद है अब्दुल कदीर साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये ब्रदर इलियास साहब से हम जानते हैं। ब्रदर, हमारा आज का जो माशरा है, जो समाज है, खासतौर पर हम देखते हैं कि जो नौजवान तबका है उसके अंदर तहम्मुल, टॉलरेंस की बहुत कमी है। जैसे आपने फरमाया कि उजलत पसंदी जो है वो हमारे मिजाज में दाखिल हो गई है, हमारी तबीयत का खासा बन गई है। लेकिन जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं तो हमें एक से बढ़कर एक मिसाल नजर आती है। हमारे आज के समाज को, आज के नौजवान तबके को टॉलरेंस की कितनी जरूरत है? आपसे हम इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे ब्रदर इलियास साहब। एक कॉलर है लाइन पे, उनकी कॉल शामिल कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसी सवाल पे लौटेंगे। जी कौन साहब और कहां से बोल रहे हैं? जी अपना नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वहीद अर्ज कर रहा हूँ कश्मीर से। जी वहीद साहब फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो मोतकिफ होते हैं, जो किसी ऐसी बस्ती में एहतिकाफ कर रहे होते हैं जहाँ पे जुमा की नमाज का एहतमाम नहीं होता जी, तो क्या उस बस्ती से निकल गई दूसरी बस्ती में जुमा की नमाज के लिए जा सकते हैं जहाँ पे जुमा की नमाज का एहतमाम होता है? क्या इस वजह से उनका जो एहतिकाफ है वो टूट जाता है? जी बहुत अच्छा सवाल है। जी मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, मस्जिदों में एतकाफ करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तशरीह करते हुए कह रहे हैं सही बुखारी के अंदर किताबुल एतकाफ के अंदर के बाबू मा जाअ अल एतकाफ फिल मसाजिदी कुल्लिहा फिल मस्जिद अज-जामे', जामे का वर्ड इस्तेमाल किया। जामे यानी ऐसी मस्जिद जहां पर जमात का और जुमा का इंतजाम होता हो, यानी आप पहले ही एतकाफ करते वक्त पर ही इस बात का आप एहतमाम कीजिए कि ऐसी मस्जिदें तलाश कीजिए जहां पर जुमा का एहतमाम हो, जहां पर जमात का एहतमाम हो। उसके लिए आपको थोड़ा और आगे भी जाकर करना पड़े तो आप जा सकते हैं। यानी मकसद आपका यहां पर क्लियर है कि भाई जुमा और जमात, ताकि आपको मस्जिद से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। तो आप वैरान जगहों पर या जहां पर बिल्कुल आबादी नहीं है, अकेले जाकर बैठ रहे हैं, तो इससे तो रहबानियत जन्म लेगी। खासतौर से बाद औकात देखा गया कि बाद लोग पहाड़ों में चले जाते हैं और कहते हैं भाई हमको ज्यादा सुकून चाहिए, पब्लिक से अलग नहीं। एहतिकाफ की इजाजत है और वो भी जामे मस्जिदों में इजाजत है। और अगर आपने मान लीजिए कहीं पर ऐसा बैठने का इत्तेफाक हो गया तो आप क्या करेंगे? तो आप जुमा पढ़कर फिर वापस आइए, उससे एहतिकाफ बातिल नहीं होता। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। जी तो उम्मीद है कि वहीद साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ब्रदर इलियास साहब आपके पास सवाल जाएंगे। जो आपने कहा कि नौजवानों के अंदर टॉलरेंस की कमी है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि सब्र की अहमियत को हमने बचपन से उनके जहनों में उजागर नहीं किया। अगर हम बचपन से उनको समझाते कि सब्र की अहमियत क्या है, उसके फायदे कितने हैं
اور बेसब्रापने के नुकसानात क्या है, तो यकीनन ब यकीनन इंशाअल्लाह बच्चों के अंदर ये कैफियत पैदा होती कि सब्र जैसे कीमती जेवर को अपने सीने से लगाते। अब चूंकि बचपन से ट्रेनिंग हुई नहीं, तो हमने देखा कि हमारे कल्चर के अंदर बाज वक्त होता यूं है कि बाज मूवीज या कुछ हमको ऐसे दिखने में बच्चों को दिखने में आ जाती है जिसमें जो हीरो होता है वो रिएक्शनरी रहता है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला, तो वो चीज बच्चों के जहन पर चस्पा हो जाती है और बाज वक्त बच्चे वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। तो आज आप देखेंगे क्राइम जो बढ़ रहा है, छोटी छोटी बात पर कत्ल तक बात जा रही है, या आप देखेंगे कि एक दूसरे को माफ करने का जज्बा खत्म हो गया और रोड रैश बोलकर एक नया प्रॉब्लम निकला है कि ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी को जरा धक्का दे दिया तो उतर कर लड़ पड़े। तो ये जो चीज डेवलप हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये कहीं ना कहीं सही तौर पर किताब व सुन्नत की तालीम नहीं हुई, कुरान हदीस से सब्र की तालीम नहीं हुई, और इसके अपोजिट में कहीं दूसरी जगह से तालीम मिल गई जिसका एक खराब नतीजा निकल कर आ रहा है। बिल्कुल ब्रदर, और रोजा इंसान के अंदर सब्र का जो जज्बा है उसको डेवलप करने में कितना अहम रोल अदा करता है, इस पर भी आपसे हम जरूर जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल नाजरीन, यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, और जैसे कि आप जानते हैं कि रमजान क्विज भी हमारे इस प्रोग्राम का बहुत खास हिस्सा है। तो जब हम ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके सामने रखेंगे आज का सवाल, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। जैसा कि आप जानते हैं रमजान क्विज का जो विनर है उसे मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो हो सकता है कि हमारे अगले विनर आप ही हों, गौर से देखते रहे हमारे ये। आइए नजमा साहबा से बात करते हैं, चंडीगढ़ से फोन लाइन पे हैं। जी नजमा साहबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये कंफर्म करना है कि जैसे कई लोग कलाम पाक में स्वाद पढ़ते हैं, कई लोग द्वाद पढ़ते हैं जी, तो हम ये जानना चाहते हैं एक्चुअल में स्वाद पढ़ना है कि द्वाद पढ़ना है, क्योंकि मेरी बेटियां द्वाद पढ़ रही हैं और मैंने स्वाद पढ़ा हुआ है। कुरान पाक की तिलावत करते वक्त प्रोनाउंसिएशन तजवीद पे जी, आयत कोई पर्टिकुलर आयत में नहीं, कोई पर्टिकुलर आयत में नहीं, स्वात या ज़ौत, उन्होंने तजवीद में स्वात उनके मौलवी साहब ने पढ़ाया था, उनके बेटियों को पढ़ा रहे हैं ज़ौत। अच्छा जी, तो प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए? दोनों अलग अलग वर्ड है। स्वाद अगर आप पढ़ते हैं तो पुर पढ़ेंगे, और एक होता है दाद। दाद के लिए जो जबान है आप दांतों का जो ऊपरी हिस्सा है वहां ले जाकर लगाते हैं। जैसे आप मुंह खोलेंगे तो दांत, ऊपर के जो दांत है थोड़ा सा जबान को टेढ़ी करके ऊपर लगाते हैं, बाद, तो सही वो वर्ड निकलेगा जो अरब पढ़ते हैं, बाद। स्वाद, तो दोनों अलग अलग वर्ड है। स्वाद को स्वाद पढ़िए आप, बात को बात पढ़िए। तो आप देखिए दाद के ऊपर एक ऐसा स्वाद लिखकर उसके ऊपर एक नुक्ता रहेगा, इसको कहते हैं दाद। जिस पर नुक्ता नहीं होता है उसको कहते हैं स्वाद। उम्मीद है आपको जानकारी। तो उम्मीद है बहन कि अब आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। दोनों दो अलग अलग हरूफ हैं और इंशाल्लाह आप यकीनन इसका ख्याल रखेंगे। मौलाना साहब जैसे अभी इन्होंने कुरान पाक की तिलावत के बारे में फरमाया, तो इसी हवाले से ब्रदर इलियास अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि कुरान पाक पढ़ते वक्त उसमें तदब्बुर, तफक्कुर, गौर व फिक्र करना कितना जरूरी है। एक इंसान अगर कुरान पाक पढ़ता है सवाब की नीयत से, और एक इंसान पढ़ता है कि उसमें वो गौर व फिक्र भी करता है, हिदायत और रहनुमाई भी लेता है, तो दोनों में फजीलत किसकी ज्यादा है? देखिए, तज़क्कुर कुरान के कुरान का सिर्फ जिक्र करना अल्हम्दुलिल्लाह फायदेमंद है, नो डाउट फायदेमंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर हुरूफ पर अल्लाह नेकी देगा। लेकिन तदब्बुर कुरान, कुरान पर तदब्बुर कर कर उसको समझना, उस पर अमल करना, उसको अपनी जिंदगी में लागू करना, उसको फैलाना, असल कुरान इसके लिए आया है। कुरान नमाज में तिलावत के लिए आया है, बिल्कुल सही। कुरान आमतौर पर तिलावत से रहमत हासिल करने के लिए आया, बिल्कुल सही। लेकिन कुरान का असल जो मकसद है वो है तमाम इंसानियत को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना। आज हमारी जिंदगियों में जितनी बुराइयां चल रही है उनमें नाशुक्रापन, उनमें बेसब्रापन मिलाकर वो कुरान की तिलावत को समझ के साथ नहीं पढ़ना, उस पर गौर फिक्र नहीं करने की वजह से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रदर। और नाजरीन, अब आपको इंतजार होगा रमजान क्विज का, तो आइए आपका इंतजार को हम खत्म करते हैं और पेश करते हैं आज का सवाल। आज रमजान क्विज के तहत हमारा सवाल है कि किस माह में कुरान करीम नाजिल हुआ है। इसके लिए 3 ऑप्शन है आपके पास, ए रबीउल अव्वल, बी शव्वाल और सी रमजान। सही जवाब चुनना है आपको और भेज देना है इसे 57575 पर। और जवाब भेजने का तरीका आप जानते हैं कि अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए RQ, स्पेस दीजिए, सही ऑप्शन लिखिए, उसके बाद अपना नाम लिखकर भेज दीजिए 57575 पर। तो हमें इंतजार रहेगा आपके जवाबात का। और सही जवाब भेजने वाले को यानी विनर को मिलेगा एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। और अगर एक से जायद हमें सही जवाबात मौसूल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लकी ड्रॉ होगा और
जो जीतने वाला है उसका इंतखाब होगा। अब हम रुख करते हैं कल पूछे गए सवाल का। कल हमने पूछा था कि अगर आसमान में बादल हों और चांद नजर ना आए तो क्या करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 30 रोजे मुकम्मल करें। यूं तो हमें बहुत सारे सही जवाबात मौसूल हुए, लेकिन कुरानदाजी के जरिए इनाम के हकदार बने हैं सैयद अली मेहदी साहब दिल्ली से। सैयद अली मेहदी साहब, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और एक कॉलर है फोन लाइन पे। जी, कौन साहब और कहां से बोल रहे हैं? मैं करवी से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या जानना चाह रहे हैं? ये मैं सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहता हूँ कि 5 तारीख के प्रोग्राम में मौलाना रज़ाउल्लाह साहब ने 2.5 किलो बताया। इससे पहले मैंने शरीयत इमारत शरीयत झारखंड का सुना 2 किलो 45 ग्राम, 1 किलो 693 ग्राम का। हमारे यहाँ 2 किलो 45 ग्राम के हिसाब से निकलता है और मैं निकालता हूँ 1 किलो 633 ग्राम के हिसाब से। तो सदका फिर कैसे दिया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप 3.25 किलो निकाल देते हैं तो 2.5 किलो भी उसमें आ गया, 1.5 किलो भी उसमें आ गया, तो जो चीज ज्यादा रहेगी वो नफिल में शुमार हो जाएगी। अगर किसी आलिम ने फतवा दिया है कि 1 किलो 633 ग्राम है तो जाहिर बात है वो उलमा भी आपको मना नहीं करते। कोई आलिम ये नहीं कहता कि 101 किलो 633 ग्राम से बढ़ के तुमको एक दाना भी नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी गरीबों का भलाई है। तो आप वो फतवा पे अमल कर लीजिए कि जिसकी वजह से ये तीनों भी जमा हो जाए, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई उलमाए किराम आपको तकलीफ में या मुश्किलात में नहीं डालते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 किलो 2.5 किलो अगर आप निकाल देते हैं तो इंशाल्लाह आप ये सारे फतवे जमा करते हुए एक अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं। उम्मीद का आपका जी, तो उम्मीद है बिरादर अजीज कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ब्रदर इलियास साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी बात हो रही थी बच्चों में सब्र की आदत किस तरह से डाली जाए, इसके लिए कोई मिसाल आप हमारे जो नाजरीन हैं, जो वालिदैन हैं, उनके सामने रखना चाहेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे नजर डालेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में रहा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का एक ऐसा पीकर थे कि आप बच्चों को बिल्कुल पूरे तहम्मुल और बुर्दबारी सिखाते, अमल कर कर बताते और उनके साथ आपका रवैया इंतहाई नर्म होता था। आज हमारे पास हम लोग थोड़ा सिजरोफेनिया की तरफ चले जा रहे हैं बाज वक्त, यानी कि बच्चों को मारने पीने बैठ जाते हैं तो बहुत ज्यादा मारने पीटने बैठ जाते हैं। इसलिए आजकल स्कूल्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप देखेंगे कि बाज वालिदैन गुस्से की हालत में इधर उधर का गुस्सा बच्चों पर निकाल देते हैं। तो ये वाली चीज को हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ आप जैसा रवैया रखेंगे, बच्चे आने वाले दिनों में अपने छोटों के साथ वैसा ही रवैया रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही ब्रदर साहब। मोहम्मद रफीक साहब हैं गाजीपुर से, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जी रफीक साहब, फरमाइए क्या जानना चाह रहे हैं? रफीक साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम भी जानना चाह रहे थे कि ये जो मिसवाक किया जाता है। जी जी हाँ जी मैं रफीक साहब, अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दें, उसके बाद अपना सवाल बयान करें आप। गुल से मिसवाक करना हम चाह रहे थे, मतलब गुल का हम मिसवाक करते हैं, गुल या मंजन से। जी, ये मेरे ख्याल में जो तंबाकू का चूर होता है गुल, उसका इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, तो क्या उस हवाले से शरीयत में क्या हुक्म है? और अगर इनका सवाल रमजान मुबारक के ताल्लुक से था तो उस बारे में भी आप थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। जिसके अंदर भी, जैसा कि सवाल से जाहिर, जिसके अंदर भी नशा वाली चीज आ जाए, तंबाकू, ऐसे सारे चीजों से परहेज करना चाहिए, चाहे रमजान हो चाहे रमजान के बाहर हो। और आपका अगर सवाल ये है कि रोजे की हालत में गलती से मैंने कोई तंबाकू वाली चीज चबा दी तो मैं क्या करूं? रोजा शुरू होता है हलक से, आपने जैसे ही मुंह में लिया, आपको आइडिया हुआ, फौरन थूक दीजिए, मुंह से आप कुल्ली कर दिए, साफ कर दीजिए। इस नियत के साथ नहीं कि सिर्फ रमजान में छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। आपका जवाब मुकम्मल। जी, और सलमा साहिबा मैसूर से हैं हमारी अगली कॉलर। जी सलमा साहिबा, फरमाइए। सलमा साहिबा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आवाज पहुंच रही है। जी फरमाइए। जी, हम रहने के लिए घर है और 2 साइड लेकर छोड़े हैं, क्या उसका भी ज़कात देना? जी, अपना सवाल एक बार दोहरा देती हैं आप तो बेहतर होता। जी, हम रहने के लिए हमारे पास घर भी है और 2 साइड एक्स्ट्रा लेकर छोड़े हैं, जी, तो जी। क्या वो साइड पर भी ज़कात देना है क्या? जी जी,
एक में ये रिहाइश पजीर है, दूसरा इन्होंने लेकर छोड़ दिया है। छोड़ना मतलब बेचने का इरादा है, बाद में इन्वेस्टमेंट का पर्पस होगा। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस घर में आप रह रहे हैं उसके ऊपर कोई भी ज़कात नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं लैसा अलल अवामिली सदक़तुन, जिससे आप काम लेते हैं तो घर गोया कि आपके काम में लगा हुआ है तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। और लैसा अलल दूरी ज़कातुन, डायरेक्ट हदीस का वर्ड भी आया है। अब दो साइट अगर आपने कुछ खरीद कर रखा है फ्लैट या प्लॉट की शक्ल में, मकसद बेचने का अगर है तो इस पर हमें दो ओपिनियन मिलते हैं। एक ओपिनियन ये है कि आप साल साल में उसकी कीमत लगाकर ज़कात निकालें, ये एक फतवा है, मुहतरम फतवा है, बहुत मेजॉरिटी यही फतवा मौजूद, मेजॉरिटी लेवल पर यही फतवा पाया जाता है। दूसरा और एक ये है कि बाज़ औक़ात साइट लेकर छोड़ जाता है और बेचने का इरादा भी होता है, तो बाज़ औक़ात एक एक साल 5-5 साल तक वो माल निकल नहीं पाता, तो बेचारा परेशान होता है कि भाई मैं ज़कात निकालूं कैसे, मेरा तो माल फंसा हुआ है। ऐसे कई चीजें हैं जिसके माल गोदाम में फंसे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें जो बेचने की होती है। तो इस पर दूसरा ओपिनियन है जो कि अता बिन अबी रबाह, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है, जो हमारे लिए राहत देता है ऐसे सारे मसाइल में, कि कहा कि एक मर्तबा जब प्रॉफिट आपको हाथ को लगता है तो उस वक्त पर ज़कात अदा कर दें। प्रॉफिट जब आपको हाथ को लगता है, गोया के 5-6 साल तक उन्होंने छूट दी, जब तक कि वो नहीं बिके आप पर कोई ज़कात नहीं है। ये दोनों फतवे हैं। ये दूसरा फतवा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो अब आप देखिए कि आप किस पर अमल करना चाहते हैं। दोनों भी फतवे अपनी जगह पर मौजूद हैं। आप तकवे को सामने रखकर जो भी फतवा करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी आपके पास इस्तिताअत है उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह गरीबों का फायदा होगा। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ब्रदर रियाज साहब, बात हो रही थी अफू दरगुजर की, उसी हवाले से एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि अमूमन जब हम बच्चों को ये सबक देते हैं कि माफ कर देना बहुत बड़ी जो है वो बुजुर्गी है, इंसान की आला अखलाकी सिफत है, कभी ये सवाल भी आता है हमारे सामने कि अगर कोई इंसान तहम्मुल से काम लेता है, अफू दरगुजर से काम लेता है, तो दूसरे उसे कमजोर समझते हैं। बच्चों को किस तरह ये समझाएं कि ये माफ कर देना आला ज़र्फी है, कमजोरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपने खानदान वालों के लिए बहुत अच्छा इंसान हूं, उनकी खैर की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन वो मेरे लिए कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहते हैं, मुझे सताते रहते हैं, मैं फिर भी उस पर माफ कर कर उनके लिए अच्छा साबित होने की कोशिश करता हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही है जैसे कह रहा है तो गोया तू अपने हाथ से उनके मुंह में खाक भर रहा है, यानी वो लोग तुझसे जो गलत रवैया अपना रहे हैं वो एक दिन उसका पछतावा उन्हें जरूर होगा, और तू जो सही रवैया अपना रहा है तुझे उसका इंशाअल्लाह फायदा जरूर मिलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि सब्र करने वाले जन्नत में जाएंगे। सब्र करना हिम्मत के कामों में से एक है। वो लोग, नेक लोग वो होते हैं जो बुराई का जवाब भलाई से देते हैं। ये वो क्वालिटीज है जो हमने अगर अपने बच्चों के अंदर दे दिए तो यकीनन यकीनन इंशाअल्लाह कमजोरी में और ताकत रखते हुए भी सब्र करने में उनको फर्क समझ में आ जाएगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बेहतरीन माफी वो है जो बदले की खुव्वत रखते हुए भी माफ कर दे, और अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के दिन यही किया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रदर इलियास साहब, बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब, आप दोनों स्टूडियो में तशरीफ लाए और हमारे तमाम नाजरीन की रहनुमाई की। और नाजरीन, चलते चलते रमजान को एक बार फिर पेश कर देते हैं आपके लिए। हमारा आज का सवाल है कि किस माह में कुरान करीम नाजिल हुआ था। 3 ऑप्शन है आपके पास, ए रबीउल अव्वल, बी शव्वाल और सी रमजान। इसमें से सही जवाब चुनना है आपको और हमें भेज देना है SMS के थ्रू। और अब वक्त हो रहा है आपको हमारे जो लाइव प्रोग्राम्स है रात के उनसे रूबरू कराने का। जैसा कि आप जानते हैं कि शब के 9 बजे हम पेश करते हैं रूह रमजान, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद से नमाज तरावी का बराह रास्त नशरिया पेश किया जाता है। शब के 10:30 बजे हम लेकर आते हैं खूबसूरत और रंगारंग प्रोग्राम रमजान मुबारक, और देर रात हम आपको ले चलते हैं मक्का मुकर्रमा, जहां हरम शरीफ से आप नमाज तरावी का बराह रास्त नशरिया मुलाहिजा फरमाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, तो अपनी मेजबान और प्रोग्राम रमजान आज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह हम कल फिर आपके सामने होंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।